Hello students, Assalamu alaikum. This is our fourth lecture in which we will talk about the Singapore model of management, uh, public administration, case studies about Singapore public service improvements. So start with the lecture. Uh, uh, Content. Case studies about Singapore's public services improvement, how it improved, Housing Development Board, the role of Housing Development Board, Port of Singapore Authority, PSA, Singapore's education system, key lessons from the Singapore civil services, and then conclusion. So we start with the first uh, ingredients case study about Singapore public service improvement. Housing and Development Board, A. In the early 1960s, there was a relevant housing shortage in Singapore. According to the HDB Statistical Office, Singaporeans who lived in the slums were almost 5 lakh 5 lakh 50,000, 30% of the nation's population. In less than 3 years, HDB built 21,000 flats, and by the 1965 it had built 54,000 flats. Finally, within 10 years of its institution, it had solved the housing problem. According to the HDB 2012, nowadays about 80% of Singaporeans live in HDB flats. Singapore people housing policies attest that the combination between good execution provided by top talent employees and clever political choice delivered by a smart politician is capable of creating a real virtuous circle that can improve the population's social life and well as country's economy. So in 1960s में बहुत शॉर्टेज थी सिंगापुर में घरों की और तकरीबन 5.5 लाख लोग तकरीबन स्लम्स में रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, जो टोटल आबादी का उस वक्त 30% थे। फिर सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में 21,000 फ्लैट HDB ने बनाए 1965 तक, और फिर इनको 1965 तक ये 54,000 तक पहुंच गए। और अपने इस महकमे के बनने के 10 साल में इसने लोगों के रिहाइश का मसले को हल किया। 2012 में उनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 82% सिंगापुर के जो रहने वाले हैं वो HDB फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो HDB ने अपने प्रोजेक्ट के तहत बनाए हैं। तो सिंगापुर में जो ये जो पॉलिसीज़ हैं वो वो इस बात को साबित करती हैं कि वहाँ पे जो काबिल जो मुलाजमीन थे इदारों के, उनका सियासी लीडरों का जो खासे अक्लमंद और कैपेबल थे, काबिल थे, उन्होंने कुछ ऐसे मौके फराहम किए जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आई और साथ ही साथ उनकी इकॉनमी भी कहीं ज़्यादा बूस्ट हो गई, बेहतर हो गई। Port of Singapore Authority PSA number 2B, established in April 1965, operated as a statutory board under Ministry of Information and Communication. गौरतलब बात यह है कि वहाँ पर पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में दी। ये एक बड़ा क्योंकि हमारे यहाँ तो इसकी पोर्ट की और शिपिंग की अलग मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान में बहरहाल उन्होंने इसको कम्युनिकेशन में डाला। ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। Responsibility for the regulation of port and shipping services, manage the container cargo terminals and other business and commercial services. तो ये जो जितने भी ये जहाज़ रानी के ज़रिए शिपिंग पर काम होता है उसको कंट्रोल करती थी, कार्गो आना ले जाना, टर्मिनल का काम और दूसरे बिजनेस वर्क्स को ये देख रही थी। To protect Singapore's strategic maritime interests and promote Singapore as a major port and international maritime center through a higher flexibility and autonomy. तो दुनिया में जो तरक्की होगी, कोई भी मुल्क तरक्की करेगा, अमूमन उसके लिए सी पोर्ट बड़ा अहम है, और उसने इस सी पोर्ट पे बड़ा काम किया
और उनने इसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली अपना मारटाइम सेंटर को और अपनी ख़ास तौर पे तिजारत को बढ़ाने के लिए अपनी पॉलिसी में और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाए और अपनी एक बड़े आज़ादाना माहौल में उन्होंने अपनी पोर्ट को डेवलप किया ताकि इंटरनेशनली इस पोर्ट की अहमियत हो और ये ज़्यादा तरक्की करे. Singapore education system at third number C. The government understood that the education would be a strategic factor in the creation of a unified and modern nation with a high quality workforce class able to reach the ambitious economic aims. The challenges in the education system as following elements: a small economy which must stay open to remain relevant to the world but then actually feels the effects of globalization. An economy with no natural resources and which must be necessary develop its own people to their fullest to survive. A young immigrants nation with a multiracial, multi-religious makeup that must stay cohesive. Singapore is very diverse. The government understood that education would be a strategic factor. गवर्नमेंट ने ये जान लिया था कि तरक्की की जो वाहिद हल है, जो तरक्की का वाहिद रास्ता है, जो स्ट्रेटेजिक इशू है वो तालीम है. और जब तक हम अच्छी तालीम के ज़रिए एक बेहतरीन वर्क फोर्स, एक बेहतरीन स्किल्ड वर्कर नहीं बना लेंगे, जब तक हम जो हमारे इकोनॉमिकल एम्स हैं, एम्बिशियस एम्स हैं, जो हमारे बड़े इंतहाई अहम ज़रूरत है जिनकी हमें एम्स की, वो गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे. जो उनके चैलेंजेस थे उनके एजुकेशन सिस्टम को वो देख सकते हैं जो एजुकेशन से कि ये एक स्मॉल इकॉनमी थी जिसे हमेशा दुनिया के लिए एक ओपन रहना था और आम तो मतलब ये कि वो इसी साथ साथ वो ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स को भी बर्दाश्त कर रहे थे. इसकी यह एक ऐसी इकॉनमी थी जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे. तो ये ज़रूरी था कि अपने लोगों को वो इसके लिए कुछ ऐसे स्किल प्रोवाइड करती, कुछ ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करती कि वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने मुतादिद जो उनकी सलाहियतें थी, मुकम्मल सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते. एक ऐसी नौजवान, एक बिल्कुल ताज़ा आज़ाद हुई एक ऐसी मल्टी रेशल, मल्टी रेस के लोग थे, बहुत से मसालिक के, बहुत से मज़ाहिब के ऐसे लोग थे. उनको एक ऐसा कोहेसिव सोसाइटी बनाना था, एक ऐसा माहौल फराहम करना था, एक ऐसी उनके अंदर एक हार्मनी पैदा करनी थी कि वो एक दूसरे से ताउन करने वाली नेशन बने और एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से और हम आहंगी से रहें. तो इसकी भी एक ख़ास ज़रूरत थी. तो ये उनके एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इस अंदाज से डेवलप करना था ताकि लोगों में हार्मनी भी हो, उनकी तालीम का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो और इसके साथ साथ वो अपनी मार्केट को लोगों के लिए ओपन भी करें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो उन पर ना आए. Education strategies in Singapore, education system in which we are talking about, education strategy in Singapore had evolved through few phases. Survival driven, it was established during 2 decades after the independence 1965 from Malaysian Federation. Efficiency driven program started when Singapore's economic and social condition improved. Number third, ability based on aspiration driven program commenced in the late 1990s when Singapore transited into a knowledge based economy. पहला इसका जो फेज था वो सर्वाइवल ड्रिवन था. इसमें इसने सिर्फ सर्वाइवल के लिए 2 डेकेड्स काम किया और फिर जब इसने आज़ादी हासिल की जब 1965 में मलेशिया से, फिर जो सेकंड फेज है इसका, इसमें सिंगापुर ने इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए ताकि अपनी अब हालत को, क्योंकि ये सर्वाइवल फेज से गुजर के अब ये सेकंड फेज में आ गए थे जिसमें इन्होंने अपनी एफिशिएंसी को एनहेंस करना था. फिर थर्ड फेज ऑफ एबिलिटी है, इसमें इन्होंने ये देखा कि अब हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमने क्या चीज़ अचीव करनी है. ये 1990s में इस स्टेज पर पहुँचे
जब ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना और फिर जाहिर है वहीं से इसका एक तरक्की का एक बड़ा आला अरफा फ्लो स्टार्ट हुआ। इन 2004 द गवर्नमेंट कैरिड आउट अ न्यू इनिशिएटिव by which instruction moved further away from the rote memorization and repetitive tasks to deeper conceptual understanding and problem based learning। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिनका एक मकसद ये था कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे कि कम तालीम हो लेकिन लर्निंग ज़्यादा हो। ये उनका मोटो था। और फिर इससे ये ज़्यादा उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम ये ज़्यादा चीज़ें याद करें मेमोराइजेशन के बजाय हम कंसेप्चुअल बेस अंडरस्टैंडिंग करें और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो। बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा मेमोराइज करें चीज़ों को, तो इसके बजाय ये है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह लर्न करें और फिर उसी लर्निंग के ज़रिए चीज़ों का हल निकालें। द कल्चर ऑफ meritocracy, Singapore ensured that the officers recruited and promoted be merit and adequate paid. Lee Kuan Yew himself said that a strong political leadership needs a neutral, efficient, honest civil service. Singapore maximized its maneuverability in its own foreign policy, realizing that small states cannot afford to make enemies. It managed its relationship adroitly in order to preserve peace and prosperity। सिंगापुर में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया और उन्होंने ऐसे ऑफिसर रिक्रूट किए जो बहुत काबिल थे और उन्हीं को प्रमोट किया गया जो इसके हकदार थे। साथ ही साथ जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ली कुएन यू, उन्होंने भी यही कहा कि एक मजबूत सियासी लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि उसके जो सिविल अफसरान जो उसको असिस्ट करते हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी, हम पहले भी इसको काफ़ी पढ़ चुके हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो पाती। पाकिस्तान आपके सामने है, इसकी बड़ी मिसाल है कि हमेशा यहाँ पर जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है उसके सियासी हुकूमत के उसके साथ मामलात कभी अच्छे नहीं रहते आम तौर पर। तो ये हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। खैर ये ज़रूरी, क्योंकि जब तक इनका नेक्सस हार्मनी नहीं होगी, ये एक कोहेसिव सोसाइटी नहीं बनेंगे दोनों, तो उस वक्त तक हालात अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए उसने ये कहा कि जब तक ये अफसरान काबिल और ईमानदार और एफिशिएंट नहीं होंगे, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप डिलीवर नहीं कर पाएगी। इसी तरह उन्होंने ये जान लिया था कि सिंगापुर कोई बहुत स्टेट नहीं, बड़ी पावरफुल स्टेट नहीं है, लिहाजा ये दुश्मन नहीं पाल सकती, दुश्मन नहीं रख सकती, दुश्मनी पालना इसके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने अपने सियासी इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को इस कदर बेहतर बनाने की कोशिश की और बनाया कि वो बड़े अमन आतशी से रहें और दूसरी रियासतों से कोई फसाद का मामला ना करें, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट तवज्जो दें और एक पीस एंड कौम पुरअमन और तरक्की याफ्ता रियासत बन सके। Singapore leaders focus on starting with small wins. Achieving developments might not mean sweeping reform, but smaller steps that have a huge impact on the everybody lives of the people, such as getting a standing pipe in village to provide water. Singapore relied not on foreign aid but on trade. And this is very important point. Not on foreign aid but on trade and investment to achieve its development goals. Foreign aid often goes back to the donor country in the form of administrative expenses, consultancy fee and contracts, such that there is actually very little actual transfer of aid to developing countries. The success of Economic Development Board of Singapore is helping bring in foreign direct investment. So Singapore leader focused on starting small window. सिंगापुर के लीडरों ने एक बार देखा, उनका बजाय बड़ी बड़ी कोई कामयाबियों के छोटी कामयाबियों पे फोकस किया जाए और छोटी छोटी कामयाबियों के जरिए ही बड़े फ़वाद हासिल किए जाएँ। फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक पाइपलाइन बिछा दें ताकि लोगों को पानी फराहम किया जा सके गाँव में, गाँव तक अच्छा ताज़ा पानी या एक
पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्लान और जगह जगह ये, उनका सिर्फ एक पानी का पाइप फराहम कर देना भी यकीनन एक बड़ी कामयाबी और इसके बड़े फॉर रीचिंग इफेक्ट्स हैं। तो बजाय इसके कि बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं और बड़े प्रोग्राम में बड़े मंसूबे बना के और बड़े बड़े एक्सपेंडिचर के ज़रिए किसी प्रोग्राम के चलाया जाता है, उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम और छोटी छोटी कामयाबियाँ हासिल करके लोगों में उन्होंने सेटिस्फेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश की। सिंगापुर ने कभी भी फॉरेन एड पे डिसाइड किया उन्होंने कि फॉरेन एड के बजाय ट्रेड करेंगे, एड नहीं लेंगे, ट्रेड करेंगे और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स जो है, इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए अपने आज़ादी के जो उनके गोल्स हैं उनको हासिल करेंगे। उनका ये ख्याल है जो बज़ाहिर बड़ा बेहतर और बड़ा एप्लीकेबल नज़र, बड़ा अच्छा देखने में दिखता है। उनका फॉरेन एड अमूमन उसकी मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन एड जो है उसकी बड़ी अमाउंट उसी मुल्क को वापस चली जाती है कंसल्टेंसी के नाम पे, एक्सपेंसेस के नाम पे और कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे, क्योंकि जो मुल्क डोनर होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद लेता है उस मुल्क में, जितने भी तरक्की के कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो आधी से ज़्यादा रकम उसने कहा उसका मेजर शेयर उसको वापस चला जाता है कंसल्टेंसी के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे, और फिर उस मुल्क में बहुत कम ट्रांसफ़र होती है मनी और वो एड उनके उस तरक्की पजीर ममालिक के गले पड़ जाती है। तो उसके लिए उन्होंने एक अपना डेवलपमेंट बोर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, जो उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उन्होंने उसमें अपने मुल्क में ट्रेड की और फिर वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। सिंगापुर लीडर्स बिलीव्ड इन थिंकिंग लॉन्ग टर्म। Singapore need to secure its water supply. Even though the city-state had signed a 100-year water agreement with Malaysia in 1961, its leaders acknowledged the inherent vulnerability of relying on its neighbor for such a critical resource. Therefore, they invested in ways to get their own resource of water, including through reservoirs, uh, desalination plants, and water reclamation facilities. Singapore's leaders were honest and not corrupt. This might be the most challenging thing to achieve. Honesty in a country makes people feel confident and their leaders and gives investors the peace of mind they need to do the business. सिंगापुर में लोगों ने उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं, वो शॉर्ट टर्म उनकी पॉलिसीज़ नहीं थी, फॉरसाइटनेस है उनकी। उन्होंने 1961 में पानी का मुआहदा 1961 से उन्होंने मलेशिया के साथ किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबे भी लगाए जाएंगे कि अगर हमारा किसी भी वक्त इनसे मामलात अच्छे नहीं रहते और ये पानी रोक दें, हालांकि वो 100 साल मुआहदा 2061 तक है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने पानी के रिजर्वायर भी बनाए। ठीक है, और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की ताकि उनके साथ पानी को रिक्लेम किया जाए और ऐसे अगर कोई मामला हो तो उन्हें पानी की तंगी ना हो। सेकेंडली, सिंगापुर के जो लीडर्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, करप्ट नहीं हैं, और इसी वजह से उनके महकमे बड़े ताकतवर हैं। और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आई, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है और वो बड़ी अपने फ्री ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ कारोबार करें और अपने कारोबार को तरक्की दें। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज़ हाईली एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल meritocracy with a strong focus on integrated strategic planning, detailed execution. Dream design, deliver, apply characterization, its approach to policy development and implementation. Singapore's small size and political stability, People Action Party has ruled Singapore since independence, have kept the vision of making Singapore a great global city constant, but have also enabled it to be a versatile in responding rapidly changing environment. With a small limited domestic market, Singapore has had to become highly integrated in the global economy. तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि सिंगापुर में उन्होंने कहा जी लीडर बड़े काबिल हैं, मेरिट की पॉलिसी है और उनकी प्लानिंग पे ज़्यादा तवज्जो है। वो ड्रीम करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं। ये 3D उनकी जो अप्रोच है
इसके ज़रिए वो अपनी डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि स्मॉल एक साइज़ में मुल्क है, छोटा मुल्क है, और पीपल्स एक्शन पार्टी पैक इसको रूल कर रही है जब से ये आज़ाद हुआ है। उन्होंने सिंगापुर को एक बड़ा कांस्टेंट और एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का मुल्क रखा है, जो अपनी ज़िम्मेदारी लेता है और लोगों की जो फलाह व बहबूद की ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करता है। उनके पास एक बड़ी छोटी सी डोमेस्टिक मार्केट है, लेकिन वो बड़ी एक हाईली ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। उसकी अपनी जो पर्सनल इकोनॉमी है, जो उसकी रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने एजुकेशनल सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इतनी तरक्की की है कि वो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। टू सर्वाइव सेवरल ग्लोबल recessions and the ever-present uncertainty of the global economy, continuous innovation has been essential with respect to Lee Kuan Yew. Second goal of nation building, early race riots led to profound commitment to creating a multiracial and multi-ethnic society. Schools play a major role in increasing Singaporean values and character, and civic moral education play a major role in schools. Honesty, commitment to excellence, teamwork, discipline, loyalty, humanity, nation pride, and an emphasis on common good have been installed थ्रू आउट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये तमाम स्कूलों के ज़रिए तालीम जो उनको स्कूलों में दी जाती है कि ताकि वो बेहतर शहरी बने, और स्कूल एजुकेशन के मामले में उनकी हाईली एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ईमानदारी, टीम वर्क, डिसिप्लिन, अपने मकसद से ये मोहब्बत, इंसानियत और ये इंसानी कौमी वक़ार, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उनके दरमियान इंस्टॉल की जाती हैं सोसाइटी के ज़रिए और गवर्नमेंट के ज़रिए। लेकिन अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज व and still are seen as an island republic most precious assets. Education was seen from the beginning as a central building with both economy and the nation. उनके पास कोई पर्सनल रिसोर्सेज नहीं था, रॉ मटेरियल नहीं था, उनकी कोई काश्तकारी और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं था। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए, एजुकेशन और नॉलेज की बिल्डिंग के ज़रिए ही जो उन्होंने स्टार्ट से जिस पर तवज्जो दी वो आज इस मकान पर हैं कि वो दुनिया की एक बड़ी हाई-फाई नेशन कहलाते हैं। ये सारे वो पब्लिक मैनेजमेंट के वो टूल्स थे, जो कंपोनेंट्स थे जिन पर उन्होंने तवज्जो दी, अमल किया, और आज वो कामयाब नेशन है। So inshallah we will come up with the next lecture very soon, and goodbye for now. Allah Hafiz. Stay healthy and take care of yourselves. Allah Hafiz.